Hello to our viewers. Welcome to today's Treated by edX Live with me, Lovely Majumdar. Before we begin, we have a question for you. Do you want to stay updated regarding the latest campus news and upcoming exams? Click on the subscribe button and do not forget to like and share today's video. Jawaharlal Nehru University, JNU, has been doing the rounds in media and other channels due to a recent movie poster release of JNU, Jahangir National University, directed by Vinay Sharma. However, we are here today to discuss something else entirely. After a wait of 4 years, the JNU Students' Union elections are scheduled to take place on March 22nd, that is Friday this week. The nominated candidates will be running for 4 posts, namely President, Vice President, General Secretary, and Joint Secretary. The parties nominated their candidates on March 16th. Let us have a look at the list of the contenders. The Left Aligned student organizations have formed an alliance. The alliance includes the All India Students Association (ISA), Students' Federation of India (SFI), Democratic Students Federation (BSF), All India Students Federation (AISF). They have shortlisted 4 potential candidates, namely Dhananjay from ISA for President, Avijit for the Vice President, Swati Singh of ISA for General Secretary, and Sajid for Joint Secretary. The Birsa Ambedkar Phule Students Association, BAPSA of JNU, have nominated Bishwajit Minji for President, Mohammad Anas for Vice President, Priyanshi Arya for the post of General Secretary, and Rupa Kumar Singh for Joint Secretary. Junaid Raza and Farheen Zaidi of the National Students Union of India (NSUI) have been nominated for the posts of President and General Secretary respectively. The right-wing students group Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) has nominated Umesh Chandra Ajmera for President, Arjun Anand for General Secretary, Deepika Sharma for Vice President, and Govind Dangi for Joint Secretary. edX Live got in touch with the candidates contending for the post of President to understand what exactly they have in mind for one of the most politically charged campuses in India. We have with us Junaid Raza from the NSUI. Let's hear what he has to say. उसके साथ साथ अगर कैंपस की बात की जाए तो कैंपस में आज 2 तरीके की राजनीति चल रही है। एक हेट मॉन्गरिंग की, एक संगठन नफरत फैलाने की राजनीति करता है तो दूसरा संगठन उस नफरत से बचाने की राजनीति करता है, यानी डर फैलाने की राजनीति करता है कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो एबीवीपी आ जाएगी। लेकिन आज कैंपस के छात्र जागरूक हो चुके हैं, वो अवेयर हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि कैंपस में सिर्फ 2 ही पार्टी के लोग एक दूसरे पर लांछन लगा करके कैंपस की गतिविधियों को और कैंपस की तरक्की को रोकने में कहीं से बाधा न बन सकें, इसलिए वो तीसरे फ्रंट की तलाश में हैं। दशकों से इन छात्रों ने वामपंथ में अपना भरोसा दिखाया, अपनी फेथ दिखाई, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि आज कैंपस में फंड कट हुआ। हॉस्टल फंड आने के बावजूद भी ये वाइस चांसलर साहिबा फंड रिलीज़ नहीं कर रही हैं। उसके अलावा जिस तरीके से पूरे देश में शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से शिक्षा का प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये अपने आप में काफ़ी निंदनीय और शर्मनाक है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके से फैकल्टीज़ का अपॉइंटमेंट हो रहा है, जो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे गहरी चोट है। और आप ये बात जान लीजिए कि किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसके हायर एजुकेशन को तबाह कर दिया जाए, वहाँ के विश्वविद्यालयों को तबाह कर दिया जाए, पूरी दुनिया वो देश वैसे ही बर्बाद हो जाती है। मौलाना आज़ाद नेशनल फाउंडेशन को बंद कर दिया गया, मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मिलता था उसको बंद कर दिया गया। इन सारे इश्यूज़ को लेकर के हम इलेक्शन में आ रहे हैं। Representing the United Left Alliance, we have Dhananjay, who puts forth his strongest points for the campaign. ये आने वाला चुनाव बतौर रेफरेंडम है सरकार के खिलाफ, जो लगातार ऐसी पॉलिसी ला रही है जहां पे फंड कट्स है, जहां पे रिसर्च में सीट्स कट्स है, जहां पे बार बार हमले हो रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरी में फंड कट्स हुए हैं। तो ये नहीं चाहती है कि हाशिए पर के लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि जो कैंपस में जहां पॉलिसी लेवल पे हमला तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो बीजेपी आरएसएस का छात्र संगठन एबीवीपी है, मारपीट भी कर रहा है, एक फिजिकल वायलेंस पे उतारू हो चुका है, जहां पे एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, भय का माहौल बनाया जा रहा है और सांप्रदायिककरण करने का कोशिश हो रहा है, एक उन्माद फैलाया जा रहा है कैंपस में। तो उसके खिलाफ भी जेएनयू का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में लेफ्ट की जो मांग है
कि जो MCM है 2000 रुपए तक अटकी पड़ी है पिछले 13 सालों से, और मेस का जो बिल है वो बढ़ता जा रहा है, तो उस 2000 को बढ़ाकर 5000 किया जाए ताकि छात्र 5000 से अपने मेस के बिल का भुगतान कर सके। और इसके साथ जो नॉन नेट फेलोशिप खत्म किया जा रहा है, मानव जैसे फेलोशिप खत्म किए जा रहे हैं, उसकी आवाज पुरजोर हो। हमारे साथियों को जो हमारे साथ कैंपस में पढ़ते थे, उनके सिर्फ बोलने पर, उनको संविधान की बात कहने पर, संवैधानिक हक की बात कहने पर जेलों में डाल दिया जाता है। उसके खिलाफ ये जेएनयू का चुनाव होने जा रहा है। हम देखते हैं कि किस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इस कैंपस में। हर रोज गाली गलौज की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उसके लिए एक मजबूत जीएस कैस को फिर से रीइंस्टेट करने की हम यहाँ से मांग करते हैं। Umesh Chandra from ABVP hopes that they will take their rightful place in JNU after their victory in the Delhi University elections. What does he have to say? Let's give it a listen. कैंपस में पर्टिकुलरली दो प्रोमिनेंट इश्यूज जो है, जो स्टूडेंट कम्युनिटी को फेस कर प्रोमिनेंट इश्यूज जो कैंपस फेस कर रही है, वो है फेलोशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फेलोशिप जो है स्टूडेंट्स को, एक तो जो जिसको फेलोशिप आ रहा है वो टाइम पे मिलता नहीं है, और जिनको नहीं जो मिल रहा है वो भी मीगर फेलोशिप है, बहुत कम है। तो फेलोशिप को टाइमली डिस्पर्सल और जो MCM और नॉन नेट फेलोशिप जो इंक्रीज करने का, वातावरण करने का एक मुद्दा है। और साथ में JNU में जहाँ तक 2 चैलेंजेस जो है, एक तो वुमेन सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और दूसरा JNU को एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए हब बनाया गया, उसको रोकने का, ये 2 चैलेंजेस है हमारे आगे। इलेक्शन में जीतने के बाद जो है ये कैंपस में, एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंटरनल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, एकेडमिक ब्लॉक 2 बिल्डिंग बना के वहाँ पे पढ़ने का जो लाइब्रेरी है नया विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ रहेगा, और जो हॉस्टल जिस तरह से 12 हॉस्टल बनाए हैं, उसी तरह लगभग 6 हॉस्टल, नया हॉस्टल बना के स्टूडेंट का जो हॉस्टल क्राइसिस और जो पढ़ने का जो सीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस को ख़त्म करने का ये मेरा एजेंडा रहेगा। This was all for today. We will see you again tomorrow. Till then, watch this space for more content related to student affairs in India. Till then, mask up and stay safe.